Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, who is the most merciful of all. How are you, my dear students of first year Hyderabad board? I think so you have been listening, writing and completing your task, and but your response is not positive. So try to complete your work and try to give your positive response as well. I'm your English lecturer, Mrs. Alia Nadeem, and we are going to start a new poem, Lines from the Deserted Village. This is a world famous poem written by Oliver Goldsmith. This is for class first year Hyderabad board. Subject is English and it is going to be presented by me, Mrs. Alia Nadeem. Okay, students, first of all, we will come to know who was Oliver Goldsmith. And we are going to study the life history of the poet. He was an Irish novelist, playwright, and poet. Irish means he belonged to England. England is also Irish is also island of England. So Irish people are also English people as well. Who is best known for his pastoral poems, The Deserted Village and The Traveller. So Oliver Goldsmith was a poet who had a great respect, regard, and great affection for the village life. Pastoral poems mean poems whose theme are related to the village and the beauties and charms of the village life. And the most world famous poems, The Deserted Village and The Traveller, has theme of showing the destruction of village life. He is cited as the most quoted English writer after William Shakespeare. He is cited means he is told, he is described that as if he is the competitor of the William Shakespeare in a way of adding the quotations. आपको पता है विलियम शेक्सपियर की quotations बहुत famous हैं, हर जगह पर English जो literature है वहाँ पर पाई जाती हैं. उसके मुकाबले में जो गोल्ड स्मिथ हैं, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, उन्होंने बहुत कम पोइट्री की, बहुत कम नॉवेल्स और जो पोइम्स लिखी थी. उसके बिल्कुल मुकाबले में बिल्कुल इतना उनका कंपटीशन है कि जितनी कोटेशन, जितना विलियम शेक्सपियर को कोट किया जाता है, उतना ही ओलिवर गोल्ड स्मिथ को जो है वो अपनी कॉन्वर्सेशंस में, ऐसे राइटिंग में, जर्नल इंग्लिश जर्नल्स में उसको बहुत ज़्यादा कोट किया जाता था. So he is a true competitor of William Shakespeare. Introduction. The Destroyed Village is a poem by Oliver Goldsmith published in 1770. It is a work of social commentary and condemns rural depopulation and the pursuit of excessive wealth. सो द डिज़र्टेड विलेज, जैसे कि हमें इसके नाम से पता है कि वो विलेज जो कि बिल्कुल अब डिस्ट्रॉयड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ये अब उसकी कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं. इसको पब्लिश किया गया था 1770 में. अब ये हमारे सोशल रिलेशंस, सोशल कमेंट्री, ये हमारे सोशल रिलेशंस, सोशल डीलिंग्स के साथ इसका ताल्लुक़ है, क्योंकि पोइट जो है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहा है इस पोएम में कि हमारे आपस में सोशल रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए. चाहे हम सिटी में रह रहे हैं, चाहे हम विलेज में रह रहे हैं, तो हमारा जो आपस में जो फ्रेंडशिप बॉन्ड है, सोशल डीलिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए एक हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट करने में. अब यहाँ पर पोइट जो है वो कंडेंस कर रहा है रूरल डीपॉपुलेशन. उसको जो रूरल लाइफ है वो बहुत कम हो रही है, डिमिनिश हो रही है, ख़त्म हो रही है, उसको पोइट जो है वो बहुत डिसलाइक कर रहा है और अपना जो है वो सैडनेस शो कर रहा है ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज. ऑबर्न नाम का एक विलेज था जिससे पोइट का ताल्लुक़ था और वो अपने पास्ट के सारे इंसिडेंट्स बताते हैं कि ये वो विलेज था, ये वो जो जगह थी जहाँ पर हर वक्त हैप्पीनेस थी. पीपल वर शेयरिंग देयर जॉयज़ एंड हैप्पीनेस टुगेदर. There were a symbol of lives, people moving and from place to another place. They were living together. They were sharing their happiness and sorrows. And what is now, there is only destruction and the village is totally destroyed. This poem describes the decline of a village and the immigration of many of its residents to America. So that's why the village was totally destroyed and villagers were forced to leave this village. So they have been migrated to America.
but in this result the village is totally destroyed. The background to the deserted village is the radical changes to rural life. अब आजकल की जो सोसाइटी है उसमें कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब से आई है, जब से साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी नेचर अफेक्ट हुई है और हमारी जो रूरल लाइफ है वो कन्फाइंड हो गई, बहुत कम हो गई और बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में टॉल बिल्डिंग्स और प्लाजाज और शॉपिंग सेंटर्स बनना शुरू हो गए। अब पोइट ने उसके स्टार्ट की लाइफ बताई है। 18th सेंचुरी वो टाइम था जबकि ये जो डेवलपमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी। अभी वर्ल्ड ने वो डेवलपमेंट नहीं देखी थी, अभी उसका सिर्फ एक अर्ली पीरियड था। अब 18th सेंचुरी वो टाइम था जब साइंस ने बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस करना स्टार्ट की थी और उसके सिलसिले में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसमें भी बहुत फास्टली रैपिडली चेंजेस आना शुरू हुई थी और रूरल लाइफ उससे पर्टिकुलरली जो है वो अफेक्ट हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स थे वो सिटी से बहुत दूर हटकर किसी विलेज रूरल लाइफ में बनाए जाते थे ताकि सिटी की लाइफ डिस्टर्ब ना हो सके। दैट्स वाई दैट जो ऑबर्न नाम का एक विलेज था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, बिकॉज दैट लैंड कुड बी परचेज बाय सम लैंड ओनर फॉर सम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। In the 18th century, as the Industrial Revolution took hold, open fields were shared by a number of villagers, were being enclosed by hedges and walls, taken over by wealthy landowners who would then lease out individual self-contained farms to their tenants. जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि विलेजर्स जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा ओपन फील्ड्स प्लेन्स जो थे वो अवेलेबल थे जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से रहते थे। देयर वर ग्रीन प्लेन्स जहाँ पर उनको जो है वो ग्रास मिलती थी, उनको उनकी लिविंग हुड वहाँ पर अवेलेबल थी, तो वो वहाँ पर बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ गुजार रहे थे। जबकि जब ये ज़मीन जो है वो वेल्दी लैंड ऑनर्स ने बहुत वो लोग जो कि अपनी बहुत ज़्यादा ज़मीन अपनी मलकियत में रखना चाहते थे, उन्होंने उसको परचेज़ कर लिया और आगे फिर ज़मीन जो है वो लीज़ पर दे दी। टेनेंट्स उस पर आ गए। उन्होंने टेनेंट्स ने क्या करना था, वहाँ पर आके बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को फॉर्म करना था और वहाँ पर बहुत बड़ी टॉल बिल्डिंग्स बनानी थी अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दैट्स वाई विलेजर्स को फोर्स किया गया कि वो उस जगह को खाली कर दें, छोड़कर चले जाएं और वो सब जो है वो अमेरिका माइग्रेट हो गए और वो जगह बिल्कुल डेजर्टेड हो गई। We are going to read down the first stanza of the poem, Lines from the Deserted Village. Sweet Auburn, loveliest village of the plain, where health and plenty cheered the laboring swain, where smiling springs his earlier visit paid, and parting summers lingering blooms delayed. Dear lovely bowers of innocence and ease, seats of my youth when every sport could please, how often have I loitered over the green, where humble happiness endeared each scene. How often have I paused on every charm, the sheltered court, the cultivated farm, the never-failing brook, the busy mill, the decent church that topped the neighboring. Okay, first of all we will translate this paragraph, then we will explain it. अब पोइट जो है वो यहाँ पर अपने विलेज को कॉल कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया विलेज का नाम क्या था, ऑबर्न। जबकि हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो इंग्लैंड में कोई भी ऐसा विलेज इस नाम से नहीं था जिससे जो है वो ओलिवर गोल्डस्मिथ का ताल्लुक़ हो, लेकिन हो सकता है कि कोई अननोन, कोई हिडन कोई ऐसा विलेज हो, या हो सकता है कि ओलिवर गोल्डस्मिथ ने उसको प्यार से ऑबर्न बुलाया हो। लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन, उस वादी में उस प्लेन का सबसे खूबसूरत तरीन गाँव था। वेयर हेल्थ इन प्लेंटी चेयर द लेबरिंग स्वेन, जहाँ पर हर तरफ सेहत, खुशियाँ और लोग अपने कामों में लगे हुए, अपनी मेहनत में लगे रहते थे और हर तरफ चहल पहल रौनक थी। वेयर स्माइलिंग स्प्रिंग इट्स अर्लियर विजिट पेड, जहाँ सबसे पहले बहार का गुज़र जो है वो उसी जगह से हुआ करता था। बहार जो थी वो सबसे पहले वहाँ पर विज़िट करती थी, सबसे पहले आती थी। एंड पार्टिंग समर्स लिंगरिंग ब्लूम्स डिले, और जाते हुए समर की जो खुशबुएँ थीं वहाँ पर नज़र आया करती थीं। डियर लवली बावर्स ऑफ इनोसेंस एंड ईज़, बावर्स मीन्स लवर्स,
एक दूसरे से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, और उनकी बहुत मासूमाना और आसान और अच्छी सादा सी मुस्कुराहटें, सादा सी हरकतें इधर उधर नज़र आती थीं। सीड्स ऑफ माई यूथ इवन एवरी स्पोर्ट कुड प्लीज़। यहाँ पर सीड्स ऑफ माई यूथ, यहाँ पर नौजवान नस्ल की मौजूदगी को ज़ाहिर करती थी। ऑब्वियसली जहाँ पर नौजवान यंग लोग होंगे वहाँ पर इनोसेंस, ईज़ एंड लव का गुज़र तो ज़रूर होगा। व्हेन एवरी स्पोर्ट कुड प्लीज़, जहाँ पर किसी भी किस्म की स्पोर्ट तो आपको पता है कि कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी को कहा जाता है। कोई भी जो स्पोर्ट होती थी, कोई भी खेल, कोई भी गेम जो थे उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता था। हाउ ऑफन हैव आई लोटेड ओवर द ग्रीन, इस जो ग्रीनरी है, ये जो सब्ज़ मंज़र है जो कि वहाँ पर नज़र आता था, उस पर हमने कई दफ़ा बहुत फ्री टाइम गुजारा। लॉयटेड, फ्री टाइम, इंजॉय, लेयर टाइम, जब कोई गम फिक्र नहीं होता, सिर्फ हम उस ग्रीनरी को इंजॉय करते हैं और वहाँ पर घूमते फिरते हैं। वेयर हम्बल हैप्पीनेस एंडियर्ड ईच सीन, कि छोटी छोटी खुशियाँ हर मंज़र की खूबसूरती में इजाफ़ा कर देती थीं। मतलब बहुत बड़ी खुशियों का इंतज़ार नहीं करते थे, छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें बहुत ज़्यादा मज़ा देती थीं। हाउ ऑफन हैव आई पॉज्ड ऑन एवरी चार्म, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो मौजूद खूबसूरती थी वहाँ हम उसको देखने के लिए रुक जाते। मतलब ऐसे लगता था कि खूबसूरती जो है वो इतनी ज़्यादा वहाँ पर होती थी कि हम उसको देखने के लिए या हम रुक जाते थे या वक्त रुक जाता था। द शेल्टर्ड कॉर्ड, द कल्टिवेटेड फॉर्म, शेल्टर्ड कॉर्ड का मतलब यहाँ पर है कि घर, पुरसुकून घर, छोटे छोटे घर जो हम जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून, अमन था, हमें शेल्टर मिलता था, सुकून मिलता था, पनाह मिलती थी। कल्टिवेटेड फॉर्म, सरखेज़ जो थे वो सरसब्ज़ खेत थे, मैदान थे। द नेवर फेलिंग ब्रोक द बिजी मिल, कभी भी ऐसा काम नहीं होता था वहाँ पर कि कोई किसी चीज़ में नाकामी हो, हर वक्त वहाँ पर एक्टिविटी, चहल पहल और बिजीनेस होती थी। बिजी मिल, वहाँ पर हमेशा हर कोई किसी न किसी काम में मसरूफ़ होता था, कभी कोई फ़ारिग नज़र नहीं आता था। और वहाँ के लोगों का एनर्जी लेवल इसीलिए हाई था कि वो हमेशा किसी न किसी काम में लगे होते थे या फिर हेल्दी स्पोर्ट्स में अपना टाइम गुजारते थे। द डिसेंट चर्च दैट टॉप द नेबरिंग, और वहाँ पर एक चर्च भी था जो कि नेबरिंग एक छोटे से किसी माउंटेन पर वाक़या था, और वो चर्च एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पर फिर वो अपनी इबादत के लिए यूज़ करते थे विलेजर्स, और वो भी एक बहुत रौनक वाली जगह हुआ करती थी। So students, we have learned from this poem. The poet was living in a village by the name of Auburn. He started living in some town. After many years, when he came back in this village, it was destroyed. An industrial revolution had been started. Rural life was totally destroyed. There was no more happiness and joys which the village people shared together. Due to the progress of technology and mechanism, the human traits of love and kindness are vanished. The poet idealizes a rural way of life that was being destroyed by the displacement of agrarian village. This agrarian village means the village related to the agriculture and cultivation. Okay, the greed of the landlords and economic and political changes. So that village was destroyed because of the greed of the healthy and wealthy landlords. The poet idealizes a rural life that was being destroyed by the displays of agrarian villagers. जैसे कि मैंने आपको बताया कि agrarian village mean that village that was related to the cultivation and agriculture. The greed of the landlords and economic and political changes. Farmers used to work together in a piece of land. They worked and earned their livelihood. So village जो कि ideal situation थी लोगों के रहने के लिए, उनकी कल्टीवेशन के लिए, उनकी फार्मिंग के लिए, उनके एनिमल ब्रीडिंग के लिए, वो जगह डिस्ट्रॉयड हो गई बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. So students, we have read the first stanza of this poem. This is a very lengthy poem and we have just read the first paragraph, first stanza.
you have to find out 20 multiple choice questions from the poem. You have to read down this stanza again and again, and you have to understand the theme, you have to understand the question answers, and you have to, while doing this activity, you have to find out 20 multiple choice questions from the poem. Thank you very much.